جی السلام علیکم ویورز. آج ایک اور جی اس چینل کے اوپر ہم ایک انٹیلیجنٹ دا موسٹ ایکٹیو لیڈی کے ساتھ ہم اپنا بلا رہے ہیں. ڈی فور ڈیلے کرنے جا رہی. ان کے ساتھ کوئی پرابلم تھا ان کے انٹرنیٹ کے ساتھ بیسکلی, سو شی couldn't manage it that way, so I am here hosting this session with Lion حجاب مظہر صاحبہ. سو حجاب صاحبہ, آپ کے تو تعریف ہم سب جانتے ہیں, جو ہم آپ کو جانتے ہیں. کائنڈلی ان لوگوں کے لیے جو آج بھی جنہوں نے سیشن جوائن کی ہے, کائنڈلی آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام انیکا فاروق. Thank you very much for all the praising words which you have used for me. تو میرا انٹروڈکشن جی بہت مختصر سا ہے اور بڑا ہمبل میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں جی. لائن حجاب مظہر اینڈ میرا نام ہے. بیسیکلی آئی ایم این ایجوکیشنسٹ اور اس کے علاوہ سوشل ورکر ہوں. اور سوشل ورک میں یہ ہے کہ جی میں لائنس کلبس انٹرنیشنل کے لاہور اقرا لائنس کلب کی چارٹر پریزیڈنٹ ہوں, جس کا فوکس ہماری نیو جنریشن اینڈ ایجوکیشن اینڈ ٹو سرو ہیومینٹی انڈر دا سلوگن آف ہیومینٹی فرسٹ ہے. اس کے علاوہ میں زون چیئر پرسن ہوں جی لاہور سی کی لائنس کلبس انٹرنیشنل میں ہی, جس میں تقریباً 12 کے قریب کلبس ہیں جن کو میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ایز زون چیئر پرسن دیکھتی ہوں اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ جی یہ ہے کہ میں ایک اپنا سکینہ رشید آئی ٹرسٹ فار لائف جو ہے وہ ہاسپٹل احمد پور ایسٹ میں, وہ بھی چیریٹی کے حوالے سے ہی چلا رہی ہوں, آپ سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ, اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ. اور بس یہی ہے کہ ایجوکیشن اینڈ سوشل ورک. اس کے علاوہ بے شک ہم یہ ایک مشرق بہت بڑا اقرا کا تعارف ہے ایک آپ کا. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو. اس کے علاوہ ایک فاؤنڈیشن ہے ہم مشعل راہ, وہ بچوں کے لیے, ڈسیبل بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرا ان کے ساتھ ان کے ہم مشعل اقرا پروجیکٹ کے لیے, کیونکہ فوکس صرف جو ہے وہ میرا ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ہے, تو ہم مشعل اقرا پروجیکٹ کی میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں وہاں پہ ان کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم اس سوشل ورک میں آئیں. اور باقی یہ کہ یہ تو ایک ایسا کاز ہے جو لائف ٹیکنگ ہے, یہ ہمیشہ چلتا رہے. یہ ایک سائیکل ہے, یہ ایک دیا ہے جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ, یہ وہ دیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آپ نے آگے لوگوں کو سونپنا ہے. سو ویری بیسٹ آف لک. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو آج دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ, میں چاہوں گی کہ وہ آپ کو جوائن کریں اور آپ کے اس تھینک کاز یو میں ویری آپ کا مچ. ساتھ دیں. آمین. اچھا جی, کم بیک ٹو آر ٹاپک. آپ کا ٹاپک ہے جی عدم, لائک یہ دا پیشنس. اس کے بارے جی میں آپ کائنڈلی اپنے ٹاپک کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی بالکل. یہ ٹاپک آج کا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے آج کل کے سوسائٹی اور سوسائٹل ایشوز کی وجہ سے, کہ ہمیں اس میں اپنی نئی نسل میں اور اس کے علاوہ ہماری بھی جو اب اس وقت جنریشن ہے جو کہ اب ظاہر ہے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, لائک وی آر آلسو ٹچنگ 50 ناؤ, آدھی صدی ہم گزار چکے ہیں, تو برداشت جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں میں. آگے بچوں میں تو اس سے بھی زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے سوشل ورک میں جو ہے وہاں پہ بھی, کہ وہاں بھی لوگوں نے ایک ریس لگائی ہوئی ہے. مطلب اس چیز کو اس کاز میں نہیں کرتے کہ ہاں جی ہم کوئی نیکی کا کام کریں, بس وی جسٹ وانٹ ٹو اوور کم ہر چیز پہ, اور مطلب ہم ہی ہونے چاہیے. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں, میرا عقیدہ درست ہے, میرا کام ٹھیک ہے, بس میں ہی ٹھیک ہوں, یہ چیز ہمارے میں انٹالرنس کرتی ہے. اسی طرح یہی چیز اب آگے ہمارے بچوں میں آ رہی ہے, جس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے ہیں. لوگ جماعت میں برکت نہیں سمجھتے, حالانکہ جماعت میں برکت ہے. اب پرانے آپ دیکھیں, مطلب میرے بچپن میں مجھے یہ یاد ہے کہ ہم جب سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو اس میں برکت بھی ہوتی تھی, اور اس میں شیئرنگ بھی ہمارے ذہن میں ہوتی تھی, کہ کیئرنگ شیئرنگ, سب کا خیال کرنا, سب کا لحاظ کرنا. مطلب آپ ہماری ایج کی خواتین کو دیکھیں تو وہ 50 60 100 بندے کا کھانا آرام سے پکا لیتی ہیں. آج کل ہمارے بچوں کی نئی نسل کی اس طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے کہ انڈیویجول ہم نے جو ہے وہ خود ہی کرنا ہے, بس یہ ہمارا ہی ہے, ہمارا عقیدہ درست ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں.
शेयरिंग कहीं पे नहीं हम करना चाहते, शेयरिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल नाउ। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे का अगर बर्गर भी खा लेगा तो वो कोई ना कोई लड़ाई है। एक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देख लें कि अगर एक दूसरे की सीट पे चला जाएगा तो वो लड़ाई है, और वो इतना रिएक्ट करते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि हम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब वैसे तो हम कहते हैं ना कि हर एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन इतनी ज्यादा अदम बर्दाश्त आ चुकी है हमारे मुआशरे में कि मतलब सब्र का पहलू खत्म हो गया है। हम अल्लाह के किसी फैसले को, रब की तकसीम को किसी चीज में नहीं मानते। मैं, मेरी चीज, मेरा बच्चा, और बस मैं ही मैं रह गई है। तो ये अना, ये ईगो, जहां पे भी ये चीज आएगी, हम जब तक झुकना नहीं सीखेंगे, हम जब तक अपने हिस्से में से किसी को खिलाना नहीं सीखेंगे, बांटना नहीं सीखेंगे, हम बर्दाश्त के पहलू पे कहाँ चलेंगे। देखिए जाब मजर साहिबा, मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हमारी माएं या हमारे घर के जो मेंबर्स हैं अदम बर्दाश्त में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए अनिका फारूक साहिबा, कि हमारी माएँ और हमारे घर के जो मेंबर्स हैं, वहीं से तो सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। कि एक पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि सास ससुर की खिदमत और उनके साथ मोहब्बत करना एक बहू का फर्ज है। अब हमारे मुआशरे में ये चीज आ चुकी है कि ये बुजुर्ग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बताएं, हमारे इस्लाम की टीचिंग में या किसी भी इंसानियत की टीचिंग में एक परिंदे को भी पानी पिलाना फर्ज है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे ये हम कहें कि जी हम बुजुर्ग, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बुजुर्ग हर हाल में हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी ये बर्दाश्त बच्चों में स्कूल लेवल पे डाल देंगे, हमारे स्कूल्स के स्कूल डेवलपमेंट प्लान का ये हिस्सा होगी टॉलरेंस, तो जितनी हम टॉलरेंस, पेशेंस, शेयरिंग, केयरिंग अपने स्कूल लेवल पे डालेंगे, उतने हमारे मुल्क में ओल्ड होम्स की जरूरत नहीं पेश आएगी। मैं इस ओल्ड होम को और इस कॉन्सेप्ट को बहुत बुरा समझती हूँ कि हमारे घरों की बरकत हम उठा के जाके बाहर फेंक आए। तो ये हमारी माओ को ये रोल प्ले करना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो बच्चा अपनी वालदा को या अपने वालिद को करता हुआ देखेगा, आप ये देखिए कि हजरत अली करमल्लाह वजह का फरमान है कि आपके 3 वालिदैन, एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एक असातिज़ा और एक सास ससुर। कहीं पे नहीं ये आया कि सास ससुर खवातीन के जो हैं वो वालिदैन हैं और मर्दों के जो हैं वो नहीं उनके वालिदैन। बराबर इज्जत, खिदमत, मोहब्बत फर्ज है। हर शख्स ही देखे, सवाब लिखा गया हमारे मुआशरे में, किसी बूढ़े को सड़क क्रॉस करवा देना भी सवाब का काम है। तो ये क्या है? ये बर्दाश्त है ना। हम जब अच्छा, आप हम बताइए, जो हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त है उसकी क्या वजूहात है। अगर हम बेसिकली मेन कॉज देखें, हमने घर से बात कर ली, आपने माओं की बात कर ली, हमने औरतों का किरदार, बेसिकली इसमें इसका मतलब है औरत का किरदार। अब एक मुआशरा, एक घर से निकल के हम मुआशरे में आते हैं। अब मुझे उस मुआशरे की बताएं कि उसमें अदम बर्दाश्त की कमी की क्या वजूहात है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की कमी की वजूहात तरबियत की कमी है, टाइम की कमी है। आप छोटी सी एक मिसाल ले लें कि अगर वालदा ड्रामा देख रही हैं या वालिद टीवी न्यूज चैनल पे कुछ देख रहे हैं, जितना एक्सपैंड हो रही हैं चीजें उतनी बर्दाश्त कम हो रही है हमारे में। जितने चैनल्स बढ़ रहे हैं, पहले एक पीटीवी होता था, एक कुछ टाइम के लिए कुछ अरसा पहले जो है वो चित्रहार और इस तरह का थोड़ा सा टेलीविजन जो था अमृतसर से ट्रांसमिशन आती थी वो होती थी, वो हम सुनते थे, वो देखते थे। अब जितने चैनल्स हैं, रिमोट पे लड़ाई। ऐसे ही है जी अदम बर्दाश्त। वालदा का अगर ड्रामा एपिसोड में से कोई सीन मिस हो गया है तो इशू, अगर वालिद के न्यूज चैनल में है तो इशू, अगर किसी का, आप एक छोटा सा देखें कि आप किसी का मोबाइल किसी कॉर्नर पे रख के देखें और अगर उसको गिरने का खतरा है तो वो वहां बैठे हुए तमाम लोगों के साथ हाइपर हो जाएगा। आप अदम बर्दाश्त की आप यहां तक देख लीजिए कि सालन आप टेबल पे डोंगे में रख दें। अब हमारे बच्चों को पहले ये तरबियत थी कि बेटा आपने अपने हिस्से का थोड़ा सालन पहले लेना है, और माएँ भी थोड़ा सालन पहले डाल के देती थी ताकि बच्चे को अगर जरूरत है तो वो दोबारा उससे मांग ले। ठीक, और हमारे इस्लाम में भी है कि भूख रख के खाएं। हाँ जी। तो अब ये है कि आप ईट ऑल यू कैन,
इस بالکل तरह ایسے की ہی ہے. हमारी जो है ऑल यू कैन ईट की हमारी जो है वो आती है जी मुख्तलिफ ये KFC पिज्जा हट और ये मैकडोनल्ड्स और इस तरह की सारी चीजों पे. ہاں तो ये क्या है मतलब ہاں शेर होके खाना जो है वो भूख बढ़ा दी गई है. जब किसी भी चीज की पहले आप देखें कि जी अब सेल्स लगती हैं, ये मुआशरे के मैं सारे पहलू बता रही हूँ. ठीक, पहले ये होता था कि गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े और ईद शबरात पे ऐसा ही होता था. 2 सूट ईद جی पे بالکل. मिलेंगे, 2 बड़ी ईद पे, 2 छोटी ईद पे, और गर्मियों के और सर्दियों. अब ये है कि औरतें भी और मर्द भी फैशन की रेस में ऐसे चले गए हैं कि 1 साल का पुराना प्रिंट एक सीजन का अगले सीजन नहीं पहनना. بالکل بالکل. सेल लग ये क्या है, ये बर्दाश्त नहीं है. ہاں उसने पहन लिया तो मैंने, इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन. तो यस वो यस. मुआशरे में मिनहसल कौम ही हम लोग जो है वो اس किसी کا को مطلب ہے बता. کہ یہ معاشرے میں یہ عدم برداشت جو ہے یہ نقصانات پیدا کر رہے ہیں. जी बिल्कुल. आप ये देखिए कि मैं ठीक हूं, बस मेरा अकीदा मेरा फिर लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखें कि हमारी और हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी में ये चीज आ गई है कि हमने गोल जो है वो अपने टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म नहीं रखे हुए. उनकी अचीवमेंट हमने بالکل. वैसे नहीं रखी. अब अगर आपने या मैंने या किसी ने फ्लाइट पे जाना है और उसका जहाज मिस हो रहा है, तो अगर वो सिग्नल तोड़ के या किसी को कोई आगे आ जाएगा, कोई हॉर्न करके कोई अगर उसने जाना है, तो उसने ये देखना है अच्छा जी आई एम सॉरी जी कोई बात नहीं, मैं जाने दें जी, ठीक है सही है जो हो गया इसे रफा दफा करो, निकल यार मेरी फ्लाइट जा रही है. ऐसा ही है ना, मेरी फ्लाइट بالکل चली ایسے ہی जाएगी. ہے. अगर ये नहीं है तो सड़क पे तमाशा है कि हम यहीं पे हैं. तो ये दुनिया जो है, ये दुनिया एक टेम्परेरी इसी तरह से चीज है, खत्म होने वाली चीज है. हम अपना टारगेट, अपना हम ऑब्जेक्टिव जो है, अगर हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हम इसी तरह करेंगे. शिया सुन्नी पे तनकीद कर रहा है, सुन्नी शिया पे तनकीद कर रहा है, अहले हदीस दूसरे पे तनकीद कर रहा है, किसी के लिए किसी किस्म की कोई बर्दाश्त नहीं है. बेसिकली जो है हमारी बेसिक टीचिंग्स ही वो क्या कहती है आउट ऑफ फोकस हो गई है. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. एग्जैक्टली पहले जमाने में ऐसे होता था कि गलत था या सही था, मैं किसी फिरके को किसी चीज को कुछ गलत नहीं कहूंगी, हम सब इंसान हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है. जब कुछ होता है, जब जंगें होती हैं या इस तरह से, कोई ये नहीं कहता कि कौन क्या है. हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो भाई भाई होते हैं. तो पहले जमाने में आप देखें कि अगर शिया का कोई जुलूस होता था तो सुन्नियों के घरों से पानी उन्हें मिलता था. بالکل بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ بات بالکل اس ٹائم پہ قابل غور ہے کہ اس عدم برداشت کی جو کمی ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بالکل ایک ناسور بن کے رہ گئی ہے اور بالکل ہماری رگوں میں وہ چیز پینیٹریٹ کر چکی ہے. ہم دیکھیں آپ نے ایک اپنے لائنز کلب کی مدد سے آپ نے ایک ایسی شمع جلائی کہ جس کے اندر آپ لوگوں کو انویٹیشن دیتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں, انسانیت کا, خدمت کا جذبہ ان میں اجاگر کرتی ہیں آپ ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اور ایسے ایسے لوگ میں نے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کی سیلفشنس اتنی بڑی تھی یا ان کی سیلف اسٹیم اتنی بڑی تھی, وہ اگر مولڈ ہو کے آپ کی طرف آ گئے ہیں یا آپ کے اس کلب میں آ گئے ہیں تو یقیناً یہ آپ کی جیت ہے. آپ سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ہمارا, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ہم مشل راہ آپ ہیں کہ آپ ایک واقعی ہمارے لیے ایک بڑی ڈائریکشن بناتی ہیں, آپ بتاتی ہیں لوگوں کو کہ کیسے آپ کی پرسنالٹی سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایجوکیشن میں گزارا, آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ ایک اسکول کی پرنسپل بھی رہ چکی ہوئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان نئے پرنسپلز کو دیکھیں اس کووڈ کے ٹائم کے بعد جب تقریباً 1 سال کے بعد اسکول کھلنے جا رہے ہیں, بچے ہمارے پڑھائی سے بالکل دور جا چکے ہیں, ہماری مائیں بچوں کی, ہماری اپنی ماؤں میں برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے. وہ جو 8 گھنٹے کا اسکول ہوتا ہے وہ ماں اور بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک فارمل ایجوکیشن بچے کے لیے اور ماں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اتنی, جس میں وہ اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے, کھانا بناتی ہے اس کے ڈفرینٹ ٹائمنگ سیٹ ہوتے ہیں. اب کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہے, بچے بالکل بگڑ چکے ہیں. ان کو صرف اور صرف یہ پتا ہے کہ انہوں نے لیٹ سو کے اٹھنا ہے, انہوں نے لیٹ سونا ہے, سارا ٹائم موبائل پہ رہنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس باہر جانے کے کا بہت زیادہ آؤٹ لیٹ نہیں ہے نا جانے کا, اپنی ایکسرسائز کرنے کا, اپنی انرجی سے ایکسرسائز کرنے کا بہت بڑا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے اب آپ کے پاس. اس کووڈ کے بعد اب جیسے اسکولس کھلیں گے,
जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलती जा रही हैं, घरों में चीजें नॉर्मल प्रैक्टिस पे आ रही हैं, तो यकीनन हमें दोबारा से अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को, इधर पाकिस्तान में रहते हुए उस कल्चर को, जो पाकिस्तानी कल्चर है, दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। आप इंशाल्लाह कुछ ताला। ऐसी सजेशन दीजिए जो माओ के लिए, उस्तादों के लिए बेहतर हो, कि वो अपने पेशेंस, क्योंकि ये टाइम है जब टीचर्स का भी पेशेंस लेवल चेक होगा क्योंकि बच्चे बिल्कुल बिगड़ के आ चुके हैं। तो काइंडली आप उन जी टीचर्स बिल्कुल। के लिए, उन असातिज़ा के लिए काइंडली वो सजेशन दीजिए। मैं उन टीचर्स के लिए, उन असातिज़ा के लिए बिल्कुल ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, जब अनरेस्ट इज़ द हेड व्हिच बियर्स द क्राउन, जब अल्लाह ने हमें रुतबा ऐसा दे दिया, जब अल्लाह ने हमारे लिए एक पेशा ऐसा चुन लिया जो कि नबियों वाला पेशा है, तो उसमें सबसे पहले बर्दाश्त का अंसर आना चाहिए। टीचर बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करने की कोशिश करे। अब लेट मी ऐड वन थिंग इन इट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम हम्म, अपने बच्चों को तो मार लेते हैं एक आधा थप्पड़, हम अपने बच्चों को डांट भी लेते हैं, लेकिन अब ये अदम बर्दाश्त का एक ऐसा सिलसिला चल चुका हुआ है हमारे मुआशरे में कि वो दूसरे के थप्पड़ पे आके कहते हैं टीचर माफी मांगे। प्लीज बिल्कुल फॉर बिल्कुल, गॉड यू आर से, एब्सोल्युटली राइट। for God's sake, parents, please don't ask for that. The more you humiliate teachers, the more you are making your kids broken personalities. The more यस, you यू आर are राइट। putting them into the exercise where they can demand their elders कि जी आप हमारे से माफी मांगे। हम मतलब हाँ, बच्चों में वो ना माफी मांगने वाला जज्बा खत्म हो चुका होगा। आप एक छोटी सी बात में आपको, अब मुआशरे की अदम बर्दाश्त कहाँ से स्टार्ट हुई, आज से तकरीबन 35 साल पहले ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। पहले मोहल्ले के लोग सीसीटीवी कैमरा का काम करते थे, किसी का बिगड़ता हुआ बच्चा पता चलता था और बिल्कुल। माँ बाप को जल्दी पता चल जाता था, तो नशा कम था। अब कोई किसी के हम्म मामले में नहीं बोल सकता। कोई बड़ा अगर हम्म। कहेगा तो उसको फौरी तौर पे बड़े से मुराद है, पहले अगर चचा ताया या मामू डांट हम्म लेते थे तो हम लोग चुप करके सुनते थे। हम कहते थे, और हम्म हमारी माएँ भी कहती थी कि तुम्हारे बाप का बड़ा भाई है, कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता, वो दादा की हम्म जगह पे। आज आप हम्म यकीन माने कि ये चीज बच्चों में खत्म कर दी हुई है हमने। हम पहले बच्चों को नानी नाना दादी दादा मोहल्ले वाले बुजुर्ग और असातिज़ा की कहते हैं कि नहीं, दे डोंट हैव राइट टू इंटरफेयर। और फिर द टाइम कम्स कि जिस वक्त द टाइम कम्स कि जिस वक्त बच्चे आपकी भी नहीं सुनते, वो कहते हैं कि वी आर एडल्ट नाउ एंड यू डोंट हैव द राइट। ये जो कुछ मिला है मुझको लौटा रहा हूं मैं, ये जी वही तरबियत होती है। आप अपने बच्चे को एक बदतमीजी करने से अगर उम्र के किसी भी दौर में किसी के साथ नहीं रोकेंगे, तो द टाइम इज नॉट फार अवे कि वो बच्चा वही एक्ट आपके साथ रिपीट करे। और वो जो एक पेन, एक तकलीफ वालदैन में जब आती है, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और उस वक्त फिर अर्श हिलता है। आप अच्छा, यहाँ यकीन पे मैं माने। आपके साथ ना एक बात और ऐड करूंगी, जी प्लीज। मिस सजाब मजर साहिबा। ये जो माएँ बच्चों को पूछती है ना, तुम्हें उसने तो नहीं कुछ कहा, अच्छा आज जी टीचर ने तुम्हें मारा तो नहीं, ये जो जी, ये सवाल है ना, कि तुम्हें गाइडिंग ये बच्चे क्वेश्चन। को शय देता है, ये जी बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और फिर एग्जैक्टली। उसके बाद प्रिंसिपल के सामने टीचर को बुला के, बच्चे के सामने टीचर को डांट देना, ये पूरा एक साइकिल है। हेयर वही बात आ जाती है कि रोल बेसिकली प्ले करना है हमारे मुआशरे की औरत ने। देखिए, मर्दों को भी एक लेवल मर्द तक, ने आ, मर्द ने आजकल के मर्दों को बच्चे, भी मैं कह रही सॉरी हूँ, टू एक लेवल इंटरप्ट तक यू। ब्लर करने में औरत का ही हाथ होता है, कि जी स्कूल में बच्चे को मार पिटिए, चलाएं चला के प्रिंसिपल की जान खाते हैं और टीचर की बेइज्जती करते हैं। तो बिल्कुल। लिहाजा औरत बहुत लेट बड़ा मी रोल ऐड प्ले कर वन रही है सेंटेंस, हमारे मुआशरे के बिगाड़ में और सुधार में। लेट मी ऐड वन मोर सेंटेंस। हमारे बच्चे की फीस जाती है तो इनकम बख्तों की तनख्वाहें जाती हैं ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। आप, मैं बताऊं कि ये फिक्रा मैंने जब सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये बच्चे सीखेंगे क्या, जिन्हें ये पेरेंट्स ये सिखा रहे हैं कि योर टीचर इज जस्ट लाइक योर मेड। हमारा यस उस यस। मजहब से ताल्लुक है जहां पे मेड्स की भी हम अपने बच्चों को देखें। अब एक सिंपल सी बात है, आप देखें, हमारी उम्र में हम घर की कुक को या उनको चाचा मासी इस तरह से बुलाते थे, खाला। बिल्कुल ऐसी है। अब हाँ। बच्चे नाम लेके बुलाते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बच्चे यू नाम राइट। लेके बुलाते हैं, जब वो नाम लेके बुलाते हैं तो उनमें वो इज्जत का अंसर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, हमारे यू माशरे का बहुत बड़ा बिगाड़ आप देखें कि ये इंसानियत का बिगाड़ इस्लाम से बिल्कुल, या मजहब से या इंसानियत से दूरी की वजह से है। बच्चों बिल्कुल, को हमने बिल्कुल। इस्लामी कहानियां और बच्चों को हमने सबक आमोज कहानियां पढ़ाने की बजाय हमने बच्चों को रुपेंजल और सिंड्रेला पढ़ाई है। हमने बिल्कुल। बच्चों को स्टेप रिलेशंस की इज्जत नहीं सिखाई। हमने बच्चों को इस हद तक नफरत फैला दी है कि हम बच्चों को इज्जत सिखाना ही भूल चुके हैं। बेसिकली हमारा हिजाब मदर साहिबा मुआशरा ना जजमेंटल हो गया हुआ है। हमने ना जी टैग कर दिया हुआ है कि सुतेली माँ हमेशा बुरी होगी। पूरी हमने होगी टैग कर दिया हुआ है कि फुफी हमेशा गलत बात सिखाएगी। हमने जी टैग कर दिया हुआ है कि मामू बेस्ट है, चाचा बुरा है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग विद इन दीज रिलेशंस, क्योंकि हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हिजाब साहिबा इन जी सारे से बिल्कुल सारे मामलों में। हम अपने घर की ही मिसालें देते हैं, हमारे जहनों में हमने अपने बच्चों को बचपन से ही ये सब चीजें जो है ना टैग कर दी हुई है कि ये रिश्ते इनकी ये क्वालिटीज हैं और ये डिसक्वालिटीज है। और यहाँ जब आप पहले ही एक एक आप पहले ही एक आंसर छोड़ देते हैं, या एक आप बच्चे को नाम टैग दे देते हैं कि ये बुरा है, तो बुरा का मतलब वो जो 100 अच्छा भी कर ले, एक बुरा करेगा तो वो बुरा हो जाएगा। सो दिस इज जी हाउ थिंग्स आर बिल्कुल हैपनिंग इन द सोसाइटी। दैट्स दिस इज व्हाट आई हाउ फील। थिंग्स आर exactly you are feeling absolutely right we do not respect we do not love we are so judgmental that we see the relations you're absolutely right और फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि मकाफात अमल की चक्की जब पीसती है तो वो बहुत बारीक पीसती है। आज अगर मैं अपने बच्चों को ये कहूंगी कि आपने फलां को सलाम नहीं करना, या मैं नहीं कहूंगी और वो अगर नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि अगर मैं बच्चों को स्टम्प नहीं करूंगी ना तो वो वक्त आएगा कि मेरा बच्चा मुझे दीवार के साथ लगाएगा और बिल्कुल। मुझे ही नहीं करेगा बिकॉज झिझक उतरती जाती है ना, झिझक उतरती जाती है। अब मुझे आज तक याद है कि अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब सिगरेट पीते थे लेकिन कभी मेरी दादी के सामने नहीं थे पीते। आज मुआशरे यानी कि उन्हें पता था कि ये बुराई है लेकिन बड़े की इज्जत के साथ अगर वो उनका लिहाज भी था साथ। अच्छा वालिद साहब की तो वालदा थी, उनके दोस्त भी मेरी दादी के सामने नहीं थे पीते। अब हालात ये आ चुके हैं कि अब बच्चे खुद सिगरेट और इस तरह की पाइप्स और इस तरह की चीजें अपने पेरेंट्स को वालिद को गिफ्ट करते हैं। व्हाट डू यू बिल्कुल, एक्सपेक्ट? बिल्कुल। अब मैंने और ऐसे लोग ऐसे हाँ बड़ा जी प्राउड अपने फील करते हैं कि वी आर फ्रेंड्स टू आवर किड्स। आपके बच्चे आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मुझे तो ये बात आज तक नहीं समझ आई। ऐसे ऐसे बच्चों के अंदर वो डर आप खुद खत्म बच्चा कर रहे हैं। बच्चा दोस्त है आपका 7 साल के बाद वाली उम्र में, कि पहले 7 साल तुम अपने बच्चे को दे दो, हजरत अली का फरमान है, बच्चा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा या दुश्मन बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि तुम अपने बच्चे को, अच्छा एक और चीज मैं कहूंगी अनिका, फारूक के बच्चों में जो डर और खौफ है ना, वो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम का और रब का होना चाहिए, जन्नत दोज़ख और रब का डिफरेंस होना चाहिए उन्हें। बाकी जो है वो अदब एहतराम का सिलसिला होना चाहिए। डर से अगर कोई बच्चा छोड़ेगा ना तो वो डर से छोड़ेगा, वो छुप के करने की कोशिश करेगा। उसको ये होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हर मजहब में ये चीज बेशक, है, बेशक, गॉड बेशक। इज गॉड्स एग्जिस्टेंस इज बेशक। एवरीवेयर। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम्म। बच्चों को मेरा ये मशवरा बिल्कुल, है बिल्कुल। अब बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त के सिलसिले में तमाम लोगों को, कि बच्चों को आप अपने घरों में खुदा के लिए एक्सपीरियंस करवाएं कि आप जो नीचे वाले कमरे में बैठ के बात करते हैं उसकी हम्म। एको, उसकी गूंज ऊपर वाले कमरे में सुनाई देती है। तो हम्म। मेरा बेटा अगर ये दुनिया इस तरह से है कि आपकी नीचे वाली मंजिल में की हुई बात ऊपर वाली मंजिल में सुनाई दे रही है, तो सात आसमान पे भी सुनाई दे रही है, सात आसमान पे लौहे भी सुनाई दे महफूज रही है। पे भी लिखी जा रही है वो चीज आपकी, वो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। आपके हाथ, हम्म। आपकी जुबान, आपके कान गवाही देंगे। बच्चों में हमने बिल्कुल। बर्दाश्त के लिए ये चीज करनी है। आप एक छोटी सी चीज देखिए कि पहले कहते थे कि बड़े करते हैं और नस्लें भुगतती हैं। अब
इस हाथ दे उस हाथ ले, बेशक एक बेशक बदतमीजी, बेशक। वो एक कफाते अमल बदतमीजी। है जी, इस जगह पर जो बोओगे वही काटोगे। बेसिकली हम बिल्कुल, ये मिथ भूल गए हैं अपनी। हम बिल्कुल ये मिथ भूल गए हैं अपनी। हमने अपने टारगेट्स, हमने गोल्स इतने मतलब शॉर्ट स्पैन के लिए कर लिए हैं कि हमें ये चीज याद ही नहीं रही कि इसमें कहाँ से ये ना पता है क्या प्रॉब्लम है हिजाब साहिबा, मसला ये है कि हम रैट रेस में इतने ज्यादा अपने आप को हमने फंसा लिया है। देखिए पता नहीं क्यों, और मुझे मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि अगर फर्ज करें जो मेरे पास है वो मेरा है, मैं उसके ऊपर मेरा मेरा दिल उसके ऊपर मुतमईन क्यों नहीं हो जाता? मुआशरे का दिल उस बात के ऊपर मुतमईन क्यों नहीं हो जाता कि जो हमारा है वो हमारा है, जो किसी और के पास है ये उसका नसीब है। हमने अपने बच्चों को इतना कॉन्शियस कर दिया हुआ है फर्स्ट आने का, कि आप देखें कि कई बच्चे मैट्रिक के बाद अगर रिजल्ट अच्छा ना आने पे हमारे कई बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं। हम जी इतना बिल्कुल, स्ट्रेस देते हैं। ये जो इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेसफुल लाइफ है ना जो हमने बच्चों के अंदर खुद भर दी है, उसकी जी वजह बिल्कुल, भी हम खुद ही हैं। मैं फिर कहूंगी कि हमारे मुआशरे की औरत, उसको एजुकेट होने की जरूरत है। एजुकेशन आपकी डिग्री से नहीं आती है, एजुकेशन आपकी बिल्कुल सेंसिटिविटी के साथ, आपके तरबियत से आपके आती है। नोन होने के साथ, आपको वो कहते हैं ना कि आपके अंदर अवेयरनेस जागना बहुत जरूरी है, सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है हमारी मुआशरे की औरत के लिए। आप इस पे क्या बिल्कुल, कहेंगी फिर से? मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि जी औरत के लिए बहुत जरूरी है कि वो तरबियत अपनी भी करे, अपने में बर्दाश्त पैदा करे। जब वो अपने में बर्दाश्त पैदा करेगी तो आगे बच्चे, यकीनन आप यकीन मानिए कि हम अगर देखें कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, बच्चा अपने गिरदो नवा से सीखता है। इंसान अनिका फारूक जी इतना जबरदस्त जानवर है कि ये तोते को अपनी जुबान रटवा लेता है, ये हाथी को बेशक सुधार लेता है, ये घोड़े बेशक जैसे जानवर को सुधार लेता है, ये शेरों को सुधार लेता है, ये बंदरों को बेशक सुधार लेता है, ये बिल्लियों को बेशक। सुधार लेता है। तो क्या ये अपने बच्चे की तरबियत सही नहीं कर सकता? क्या ये अपनी देखिए तरबियत आप सही नहीं माओ कर को सकता? देखिए ना, अगर माए बच्चों के सामने अपने हस्बैंड के बारे में कि तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, सारी जिंदगी तुम्हारी दादा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बाप ने तुम्हारी कर दी, और फिर वो एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चा बाप की इज्जत भी करे। जब तुम खुद जी अपने खामद की इज्जत नहीं कर रही और बच्चे के सामने उस बेचारे की बुरी हालत कर रही हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट कि वो बच्चा भी आपकी माँ की लाइक इज्जत करे ना? तो इज्जत दो और इज्जत लो, मेरा तो ख्याल है कि ये पॉलिसी सबसे पहले आती है। ये सबसे पॉलिसी आती है पहले। इसके अलावा आप ये देखें कि पहले घर के तलाकों की शरह कम थी। पहले सिर्फ तलाक की वजह होती थी। क्या वजह होती थी जी? बच्चा नहीं हुआ। क्या वजह होती थी? हम्म एक जाहिलाना सोच के जी बेटा नहीं हुआ। हम्म ये दो वजूहात होती थी, या कोई खाम खाम निकलता था कि जी नशा करता है लड़का, कोई वजह होती हम्म थी। यार अब तो हम्म। बगैर वजह का तलाक हो जाती है। अब बिल्कुल तो ऐसे मेरी ही समझ से वही बाहर है। अदम क्यों? अदम रीजन क्या बर्दाश्त है? की जो है वो कमी। उसकी वजह ये कि हमारी घर की लड़ाई अब घर की लड़ाई नहीं रही। घर का राज घर का राज नहीं रहा। घर की बात नहीं रही। और ठक से एक सेकंड में सोशल मीडिया पे आती है। ठक से एक सेकंड में वॉइस हम्म नोट की सूरत में पूरे खानदान में फैलती है, और हम्म हर हम्म बंदा हम्म अपना मशवरा देता है, छड़ ते 1 मिनट च वापस आ जा, ਅਸੀਂ बैठे हो यहाँ। हम्म और फिर उसके बाद हम्म क्या होता है? ना किसी भाई का पता चलता है, ना किसी बहन का पता चलता है। वालदैन खुद हम्म बुढ़ापे में मजबूर होते हैं। जिंदगियां आगे खराब होना शुरू हो जाती हैं। बेशक। खातून को देखें, अगर औरत इतनी ही हमारे मुआशरे में आप देखें कि अदम बर्दाश्त की वजह से ये रेशो कितनी बढ़ चुकी है। अदम बेशक बर्दाश्त की बेशक। वजह से ये चीज, कितने बच्चे अपने वालिद के प्यार से या वालदा के प्यार से या घरेलू जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। तो उस महरूमी में आके हम एक बीमार मुआशरे की पैदावार कर रहे हैं। जहां पे बेशक उन्हें बेशक पता है बेशक। कि जहां पे उन्हें पता है कि हमने किसी को बर्दाश्त नहीं करना। उस जमाने में औरत कहती है कि जी मैं कमा लूंगी और ये हो जाएगा। हम्म लेकिन हम्म, कभी औरत की कमाई में इतनी बरकत नहीं पड़ सकती कि वो जिंदगी के तमाम बिल्कुल। मसाइल, अल्टीमेटली कवाम मर्द है। अल्टीमेटली कवाम मर्द है। और हम्म अल्टीमेटली अगर मर्द की कमाई थोड़ी कम भी है ना, तो, तो सब्र तहम्मुल नहीं है ना औरतों में ना मर्दों में। आज का मर्द भी ये चाहता है कि पहली बीवी है, अच्छा ये
ओ नहीं, अब तो हम जो है वो किसी और अमीर औरत के साथ दूसरी शादी कर लें। हाँ आज की बिल्कुल बिल्कुल औरत भी बिल्कुल। ये चाहती है, आज की औरत भी ये चाहती है कि नहीं, पहले ये होता था कि अगर लड़की की मतलब सबसे बड़ी बात का बर्दाश्त इस तरह से होती थी कि कहते थे अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो रहा है, या नहीं ठीक है, हम्म, सही है, बाइक वाले के साथ भी शादी करने के लिए लड़की तैयार हो जाती थी। अब हम्म। गांव देहात की एक 5 पढ़ी हुई लड़की की भी ये वो मीडिया और इन सारी चीजों की वजह से अपने आप को वो किसी ड्रामे की हीरोइन ही समझती है। और ड्रामों में बिल्कुल भी सही कह रही है। देखिए, हम ड्रामों में भी जो है वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। हाँ अभी ये बिल्कुल पिछले बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों क्या हम्म। था, जिस ड्रामे पे बहुत ज्यादा शोर होगा मचा था, उसमें यही था ना जी कि वो बिल्कुल एक बिल्कुल। बीवी अपने खामद को, मोहब्बत करने वाले खामद को, सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से छोड़ हाँ गई थी। छोड़ के चली तो वो जाती क्या है। था कि वो जिंदगी की रंगीनियों में उस बिल्कुल। तरह ये एंजॉय कर रहा हिजाब साहिबा हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हमेशा हम वो कहते हैं ना, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हमेशा जो ऑलवेज दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हम हमेशा वो चमकती हुई चीज को सोना समझ के उसके पीछे चले जाते हैं। अच्छा, अब हम अपना इस सेशन को अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बड़ा अच्छा चला। आप काइंडली आखिर में हमारे मुआशरे में, वो चाहे मर्द है, वो चाहे औरत है, वो चाहे एक बालिग बच्चा है या वो एक छोटा, आप एक ऐसा मैसेज दीजिए जो हमारे लिए एक मशले राह बने, जो हमारे लिए एक ऐसा ऐसा पॉइंट बने जिसके ऊपर हम हमारा मुआशरा सोचने पे मजबूर हो कि हमारे लिए क्या ये पेशेंस लेवल इतना जरूरी है, इसके ना होने से और इसके होने से हमारी जिंदगियों में क्या फर्क पड़ सकता है। सिर्फ एक हदीस या अपने जहन में रख लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपना हक अल्लाह की खातिर छोड़ दोगे तो हौज़े कौसर की कसम कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इस हदीस को जहन में रखें, और अगर कोई आप पे जुल्म करे, अगर कोई आपका हक छीने, तो कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त, देखिए कुछ सेकंड्स का होता है, हम अगर साइकोलॉजी को भी देखें ना, तो गुस्सा कुछ हम्म, सेकंड के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए होता है। और हम्म, इस्लाम में है कि आपको अगर गुस्सा आया है तो गुस्सा आग है जिसे पानी ठंडा करता है। आप वुजू करें, हम्म। आप वुजू करें, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट बैठ जाएं, जाएं पानी बिल्कुल। पिए, पानी पिए। बेशक अल्लाह बेशक। ने आपको बर्दाश्त करने के बहुत से अवामिल बताए हैं। आप दो बिल्कुल नफल हमारे पढ़ें, रिलीजन आप जाए के नमाज पे हमारे रोएं, रिलीजन आपका नॉर्म्स दिल इतने हल्का अच्छे हो हैं। जाएगा। बिल्कुल। बेशक आप जाए बेशक। नमाज पे बैठें, आप रो लें, आप अपने रब के आगे दिल हल्का करके रब पे फैसला छोड़ दें। आप यकीन माने कि हमारी जिंदगी के कुछ, हर इंसान के सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता अलावा अपने रब के। बेशक मैं, बेशक। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अपने दुश्मन के लिए दुआ करो। आप बेशक यकीन माने कि मैंने जब जब ये आजमाया, मेरे रब ने मुझे पहले से बेहतर से नवाजा। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया हिजाब मजहर साहिबा, आपके इसी नोट के ऊपर कि कोई नहीं जानता पर वो जो जानता है, कोई नहीं देखता पर वो तो देखता है, वो जो शारक से भी करीब है अल्लाह ताला, वो बेशक हमारे लिए हमेशा हमेशा उन्होंने छोटी छोटी बातों में इतनी मुराद रखी हुई है, छोटे छोटे अवामिल में इतनी मुराद रखी हुई है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी का अमल करने पे और हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करने की सलाहियत पैदा करे। अल्लाह ताला हमारे इस पेशेंस के लिए मैं कहती हूँ कि हमारी औरतें, हमारे मर्द, हमारे बच्चे, हमारे घर, सबको हमारे इस माफ कर मुआशरे दे, को एक बेहतर सबको मुआशरा माफ कर बनाने में दे, हमारी मदद करें। अल्लाह जी की खातिर सबको माफ कर दे। वो बेशक, अल्लाह आपने आपको बहुत बहुत बड़ी बात की नवाजेगा। है। ये जज्बा हम सब में आ जाए तो वी पीपल आर ब्लेस्ड पीपल, फिर तो वो बात है ना कि जन्नत फिर हमारी। इंशाल्लाह ठीक है। ताला, चले इंशाल्लाह हिजाब ताला। मजहर साहिबा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी वंडरफुल लाइक टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू। अल्लाह ताला थैंक आपको यू, जिंदगी सेहत दे, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, थैंक खुदा यू, थैंक हाफिज। यू। अल्लाह खुदा हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज।